ବାଇବଲ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଏକମାତ୍ର ପୁସ୍ତକ ଅଟେ। ଆଉ ଏହି ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ରହିଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରହିଅଛି। ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଇବଲରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ସେ ଲେଖିଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହେଲା ଯେ ହାଡ଼ କାହିଁକି କ୍ଷୟ ପାଏ, ଅସ୍ଥି କାହିଁକି କ୍ଷୟ ପାଏ। ଏ ବିଷୟରେ ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହେ? କାରଣ ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ମଣିଷର ଶରୀରର ହାଡ଼ର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ବଢ଼ୁଅଛି। ବୋନ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଣ୍ଠୁ ବଥା, ଗଣ୍ଠି ବଥା, ଏହି ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଆମମାନେ ଦେଖୁଅଛୁ। ଆମେ ଭାବୁ ଅନେକ ସମୟରେ ବୟସ ହେଇଯିବାରୁ ଏହି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ମାତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହେ ଯେ କାହିଁକି ଏହି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ବା ହାଡ଼ର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ହୁଏ, ସେହି ବିଷୟରେ ବାଇବଲରୁ କେତୋଟି ପଦ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଗୀତ ସଂଗୀତା ପୁସ୍ତକ 31 ଗୀତର 10 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ଦୁଃଖରେ ମୋହର ଜୀବନ ଓ ହାହାକାରରେ ମୋହର ବର୍ଷ ବହି ଯାଉଅଛି ଓ ଅପରାଧ ସକାଶୁ ମୋର ବଳ କ୍ଷୀଣ ହେଉଅଛି ଓ ମୋହର ଅସ୍ଥି ସବୁ କ୍ଷୟ ପାଉଅଛି। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଗୀତ ରଚକ ସେ ଦାଉଦ ଏ ପ୍ରକାର କହନ୍ତି ଯେ ଅପରାଧ ସକାଶୁ, ପାପ ସକାଶୁ ମୋହର ଅସ୍ଥି ସବୁ କ୍ଷୟ ପାଉଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଗୀତ ରଚକ ଦାଉଦ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ବିଷୟକୁ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେ ଲେଖନ୍ତି ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ପାପ, ଆମମାନଙ୍କର ଅପରାଧ, ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀରର ବୋନ୍, ଯେଉଁ ହାଡ଼ କି ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ, ଉଠିବା ପାଇଁ, କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ, ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ଯୋଗୁଁ ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ଥିବା ହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଅଛି। ଅପରାଧ ସକାଶୁ, ପାପ ସକାଶୁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ପାପ କରୁ ଆଉ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଏହି ପାପ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପାପ କରିବି ଆଉ ପାପକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଦେବି ତ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଠିକ୍ କଥା, ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କର ଅପରାଧ, ଆମମାନଙ୍କ ପାପ ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହୁଏ? ଆମମାନଙ୍କର ହାଡ଼ ସବୁ କ୍ଷୟ ପାଏ। ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୀତ ସଂଗୀତା 32 ଗୀତର 3 ପଦ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ମଇନି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦିନଯାକ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋହର ଅସ୍ଥି ସବୁ କ୍ଷୟ ପାଇଲା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମମାନେ ନୀରବ ରହୁ, ଆମେ ପାପ କରୁ, ଆମେ ନୀରବ ରହୁ, କ୍ଷମା ମାଗୁନାହୁଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀରର ହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷୟ ପାଇବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଦେଖାଉଛୁ, ଆଜ୍ଞା ଆମର ହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ବଥଉଛି, କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଲାଗୁଛି, ମୋତେ କିଛି ଔଷଧ ଦିଅନ୍ତୁ। ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଔଷଧ ଦିଅନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆମେ ସୁସ୍ଥତା ଆମେ ପାଇପାରୁନାହୁଁ। ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ ସମସ୍ୟା କେଉଁଠି ରହୁଛି। ମାତ୍ର ଏହି ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଉଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ସମୟ ନୀରବ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦିନଯାକ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋହର ଅସ୍ଥି ସବୁ କ୍ଷୟ ପାଇଲା। ଏହି ଜାଗାରେ ପୁନର୍ବାର ଗୀତ ରଚକ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ନୀରବ ରହିଲି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୁଁ ଭୁଲ କଲି, ପାପ କଲି, କାହାକୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା କଥା କ୍ଷମା ମାଗିଲି ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କଲି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କଲି ନାହିଁ, ମୁଁ ନୀରବ ହେଇକିନା ରହିଲି। ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ଜୀବନରେ ଅନେକ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁନି ହେଇ ରହିଲି, ନୀରବ ହେଇ ରହିଲି। ସେହି ସମୟରେ ମୋହର ଅସ୍ଥି ସବୁ କ୍ଷୟ ପାଉଅଛି। ଏହା ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ସୁସ୍ଥ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଯଦି ନୀରବ ହେଇ ରହିବା, ଆମେ ଅପରାଧ ପାପରେ ଆମେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମମାନେ କି ପ୍ରକାର ଭାବେ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଆମେ ସାମ୍ନା କରୁଛୁ, ଏହା ବାଇବଲ ଆମକୁ କହେ। ଏହି ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟ ବାଇବଲରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଏହି ସବୁ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଆମେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପାପ ଯେ କେତେ ମାରାତ୍ମକ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନର୍କକୁ ଠେଲିଦେବ ତାହା କେବଳ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀରର ଯେଉଁ ହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାହା ଧୀରେ 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 କ୍ଷୟ ପାଉଅଛି। ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ବଥା ଗୁଡ଼ିକ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଲୋକମାନଙ୍କର ବଢ଼ୁଅଛି। ଗୀତ ସଂଗୀତା 38 ଗୀତର
3 पद ए प्रकार लिखा जाए, तुम्भ कोप सकाशु मो मांसरे किछि स्वास्थ्य नहीं, पुणी मो पाप सकाशु मो अस्थिरे किछि आराम नहीं। प्रिय माने देखंतु, आजिकाली साइंस एते डेभलप करी अछि, आमानकर शरीर थिबा रोग गुड़िक को डिटेक्ट करिवा पाई जानिबा पाई विभिन्न प्रकार मेसिन गुड़िक बाहर लानी, हेले मध्य आमानकर समस्या गुड़िकर समाधान हेउ नाही। आमानकर हाड़ गुड़िक भांगी जाउछि, विभिन्न प्रकार दुर्घटना रे आमानकर हाड़ गुड़िक क्षय पाउछि। अल्प बयस रे आमाने आंठु गंठी बथा गुड़िक आमानकर बाहरु अछि। कौन पे सब होछि? लिखा जाउछि जे मो पाप सकाशु मो अस्थिरे किछि आराम नहीं। प्रिय माने आराम नहीं, क्षय तो पाउछि किछि आराम नहीं, कष्ट जंत्रणा। आमे अनेक समय भाबु आमे काहेकि मोर एही प्रकार कष्ट होछि, काहेकि ए प्रकार जंत्रणा होछि। बाइबल आमान को ए सब विषय रे अति सुंदर भाव शिक्षा दिए। आमानकर एही सब विषय गुड़िक द्वारा आमानकर अस्थि गुड़िक आमानकर हाड़ गुड़िक दिन को दिन क्षय पाउछि, हाड़ गुड़िकर समस्या बढ़ुछि, हाड़ गुड़िकर आराम नहीं। प्रिय माने आमानकर प्रभुंकर वाक्य को आम शिर धार्य करिबार अछि। पाप अपराध रे आम जीवन यापन कले हेबो नाही। प्रिय माने मु आपण मानकु हितोपदेश 12 अध्याय 4 पद पढ़ेबा पाई चाहे। गुणवती स्त्री आपणा स्वामीर मुकुट स्वरूप, मात्र लज्जादायिनी स्त्री ताहार हाड़ सबु क्षय स्वरूप। प्रिय माने एई प्रकार भावरे आमे जदि प्रभुंक इच्छा अनुसार, प्रभुंक वाक्य अनुसार जदि आमे निजर जीवन साथी को आमे बाछिबु नहीं, मन इच्छा भाव में बाछिबु, परमेश्वर वाक्यर विरोध में जाई बाछिबु, आमे टंका कमई पारिबु, आमाने घर द्वार बांधि पारिबु, पुओ झियो जन्म करि पारिबु। मात्र लिखा जाउछि लज्जादायिनी स्त्री ताहार हाड़ सबु क्षय स्वरूप, स्वामीर हाड़ गुड़िक क्षय पाइब। जो समय गोटे स्वामी गोटे लज्जादायिनी स्त्री को बाहा हेबे, से जानि नथिबे, ता रूप सौंदर्य देखि बाहा जिबे, मात्र सही स्त्रींकर आचार व्यवहार जो समय स्वामी को लज्जा आनी दिए, से समय से कहा कही पारती नहीं, मात्र धीरे 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 तांकर हाड़ सबू क्षय पाए। यह बाइबल आम को कहे। हितोपदेश 14 अध्याय 30 पदरे ए प्रकार भाव लिखा जाए, शांत अंतकरण देहर जीवन स्वरूप, पुणी ईर्षा हाड़र क्षय स्वरूप। शुणुथिबा प्रिय भाई भूणी माने, यदि कौनसी व्यक्ति उन्नति करुछि, आपणक भाई आपणक पड़िशा लोक, ताहले आपण ईर्षा करंती कि? यदि आपण ईर्षा करंती ताहले ईर्षा कौन करे? हाड़ को क्षय करे। भितरे भितरे ईर्षा आम हाड़ गुड़िक को नष्ट करे, धीरे 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 से क्षय पाए। ईर्षा आम ईर्षा करबा जे केड़े बड़ पाप यह आम जानिछु, मात्र ईर्षा द्वारा आमानक शरीर मध्य थिबा हाड़ गुड़िक धीरे धीरे दुर्बल हो जाए, धीरे धीरे क्षय पाए। यह प्रभुंकर वाक्य आमान को कहे। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ईर्षा ଠାରୁ ଆମେ दूर रहिबा। ଯଦି ଆମେ ईर्षा करिबा ଆଉ ଆମର ହାଡ଼ର ସମସ୍ୟା ଥିବ, ଆମେ ଯେତେ ମେଡିସିନ ଖାଇବା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ ईर्षा ଯୋଗୁଁ ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀରର ହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷୟ ପାଏ। ଆମେ ଯେତେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଟାବଲେଟ୍ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ଭିଟାମିନ୍ ଟାବଲେଟ୍ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ईर्षाକୁ ଛାଡ଼ୁନାହୁଁ, କିଏ ଗୋଟେ ଭଲ ଗାଡ଼ି କିଣିଲା, किए गोटे भल घर बांधिला, का पुओ गोटे भल जॉब पाइला, का पुओ को गोटे भल बोहू मिलला, बा का झील को गोटे भल ज्वाई मिलला, ये सब गुड़िक द्वारा जदि आम भितरे भितरे आम ईर्षा करूँ ताहले आमर हाड़ गुड़िक क्षय पाइब, क्षय स्वरूप आम हाड़ गुड़िक धीरे धीरे भितरे नष्ट हो। से आमने जाग्रत हेबा, आम ईर्षा ठारू आम दूर रहिबार आवश्यक रही। हितोपदेश 15 अध्याय 30 पद मु पढ़िबा पाई चाहे। ए प्रकार लिखा जाए, चक्षुर दीप्ति मन को आनंदित करे, पुणी उत्तम समाचार हाड़र पुष्टि करे। केते सुंदर प्रिय माने,
उत्तम समाचार खुशीर समाचार आउ से खुशीर समाचार आ उत्तम समाचार केवल बाइबल रे रही आमे जो खबर कागज रे आमे पढुचु जो न्यूज आमे देखुचु ए जगत रे कोनोसी प्रकार भाबरे उत्तम बा गुड न्यूज नहीं। गुड न्यूज केवल प्रभुଙ୍କ पाखरे अछि बाइबल रे अछि। से गुड न्यूज हमकु कहे तुमको नरक को जीवाको पड़िबो नहीं। से गुड न्यूज हमकु कहे तुम बदल रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट क्रूस रे से मृत्युवरण करियछन। से गुड न्यूज कहे आम माने समस्ते ईश्वरंकर संतान अटो। से गुड न्यूज कहे जे तुम सब पाप गुडी को क्षमा हो जाइछि। एही उत्तम समाचार एही उत्तम समाचार जो समय आमे सुनिबा प्रभुଙ୍କ वाक्यरू आमे प्रतिदिन बाइबल पढ़िबा जो उत्तम समाचार प्रभु आमान को निमंते ए बाइबल रे देइछंती ए सब गुडी को हम जो समय आमे सुनिबा ताहा हमर हाड़र पुष्टि आमान को हाड़ को और हृष्ट पुष्ट करे आमर हाड़ को सुस्थता प्रदान करे। प्रिय माने आमे देखुतिलु कि प्रकार कौन कौन कले आमानकर हाड़ गुड़िक क्षय पाउछि मात्र कौन करिबा द्वारा आमर हाड़ सुस्थ सबल रही पारिबो पुष्टि हेई पारिबो। प्रिय माने प्रभुंकर वाक्य जे एते सुंदर वाक्य आ एही वाक्य द्वारा परमेश्वर आज आमान सहित कथबार्ता होचंती। यह केवल गोटे धर्म पुस्तक बोली भाभी आपण माने रही जांतु नहीं। बाइबल रे सब विषय गुड़िक प्रभु आमान को निमंते लेखि अछंती। आ गोटे वाक्य मु आपण मान को निकट रे रखिबा पई चाहे हितोपदेश 16 अध्याय ताहार 24 पद रे ए प्रकार भाव रे लिखा जाए मनर भाषा मधुचाक सदृश्य ताहा मन को सुमिष्ट और अस्थि की स्वास्थ्य। प्रिय माने केते सुंदर मनर भाषा मधुचाक सदृश्य ताहा मन को सुमिष्ट और अस्थि की स्वास्थ्य प्रदान करे। प्रिय भाई भौणी माने प्रभुंकर वाक्य जे आमान को एते सुंदर भावरे आमान को शिक्षा दिए आमाने सही वाक्य को आमे सुनिबा आमे पढ़िबा हितोपदेश 17 अध्याय एहार 22 पद ए प्रकार लिखा जाए आनंदित हृदय उत्तम औषध मात्र भग्न आत्मा अस्थि सबु शुष्क करे। प्रिय माने आमर हृदय को आनंद देवा पाई दुनिया रे एबे जाए कोनोसी प्रकार इंस्ट्रूमेंट कोनोसी प्रकार जिनिस नहीं जोटा कि आमर हृदय को आनंद दे पारिबे। आमर हृदय को आनंद केवल पवित्र आत्मा दे पारिबे प्रभु जीशु ख्रीष्ट दे पारिबे। परमेश्वर को वाक्य आमान को हृदय को आनंद दे पारिबे। जगतर आनंद अल्प समय पाई ताहा शारीरिक आनंद आमर मनर आनंद जो समय रे आमे गोटे फिल्म देखु अल्प समय पाई 2 घंटा पाई आमको आनंद आनी दे पारे। जो समय कहीं मद पियंती निशा थिबा जाए ताको आनंद दे पारे। कोनोसी व्यक्ति यदि कोनोसी शारीरिक संपर्क का सहित करती अल्प समय पाई से आनंद दे पारे। सब शारीरिक आनंद गुड़िक रही मात्र बाइबल आमान को कहे जे आनंदित हृदय उत्तम औषध। प्रिय माने आमान को परमेश्वर से ही औषध देवा पाई चाहूँ जो औषध आमाने जदि आमे सेवन करिबा आमर भग्न आत्मा और अस्थि सब कौन करे से संपूर्ण भाव रे सुस्थता प्रदान करिबो। अस्थि सब को सुस्थता प्रदान करिबो। मात्र जदि आमे आमान को हृदय आनंद रहिबो नहीं ताहा हेले आमानकर अस्थि सब शुष्क हो जीवो। प्रिय माने परमेश्वर वाक्य जे उत्तम समाचार हाड़ को हृष्टपुष्ट करे। परमेश्वर वाक्य आमानकर हृदय को आनंद करे जहाँकि आम औषध से यदि आमे क्या क्षमा देना अपराध रे जीवन यापन करुचु आम मन मध्य ईर्षा अच्छी तार यही समय रे प्रभु निकट को आमे आसीबा आमे आमर हाड़र समस्या रो समाधान प्रभु निकट रही अछि। से आमानकर हाड़र समस्यार समाधान करि परिबे। आमानक अस्थि क्षय पाइबारु से आमको उद्धार करि परिबे। आमर अस्थि को हृष्टपुष्ट करि परिबे। उत्तम स्वास्थ्य दे परिबे। जंत्रणारु से आमानको उद्धार करि परिबे। आ प्रार्थना करिबा कि प्रभुଙ୍କ निकटरे आसंतु आमे पदे प्रार्थना करिबा। स्वर्गीय पवित्र पिता आमे धन्यवाद दउछु तुमे आमानकर हाड़र समस्या विषय तुमे कहिल। आमानक जीवन रे अनेक समय रे एई सब विषय गुड़िक देखा जिबा द्वारा आमानकर हाड़रे जला पोड़ा आंठू गंठी बथा विभिन्न प्रकार विषय गुड़िक होता है जहाद्वारा आमे कष्ट जंत्रणा आमे अनुभव करूँ। आज वाक्य माध्यम तुमे आमान सहित कथा
आमर अपराध सकाशु आम ईर्षा सकाशु प्रिय प्रभु आम प्रार्थना करुचु दयाकोरी तुम्हें आम को क्षमा कर आमर अस्थिरे उत्तम स्वास्थ्य प्रदान कर जो मैंने शुणुंट से जहाँ भी आंठु गंठी बथा दरद रही से सबू से जीशु नाम रे सुस्थता दे गौरव पाओ प्रार्थना प्रिय प्रभु जीशु नाम रे मागुअछि आमेन।